Hey guys, welcome back again. Today is our day 5th of the World Breastfeeding Week. Yesterday was day 4 and due to some technical issues मैं आपके सामने वीडियो नहीं लेकर आ पाई. Day 4 और day 5 के टॉपिक्स को हम आज की वीडियो में ही कवर करने वाले हैं. In this World Breastfeeding Week, today we are going to discuss about the special food, special nutrition for lactating mother. What are the food categories they have to include in their breastfeeding period? And the top 10 steps which is recommended by World Health Organization for a successful breastfeeding. And be ready, young moms, pregnant ladies, tomorrow I'll go live in front of you to taking all your queries. So be ready at 11:30 a.m. on YouTube. So let's start the today's video. Already discussed nutrition for pregnant or lactating mother in our day 2 of the World Breastfeeding series. अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है then I must recommend you watch that video, क्योंकि आज हम डीप न्यूट्रिशन फॉर लैक्टेटिंग मदर्स के बारे में बात करने वाले हैं. क्योंकि जब हम प्रेग्नेंट मदर और लैक्टेटिंग मदर के बारे में बात करते हैं, द types of food, nutrition requirement and the type of nutrients they have to include in their lifestyle, they are going to be different. Food categories दोनों ही cases में same होती हैं. There are total 7 food categories जो उन्हें अपने life में उस time पर include करनी है. First is your cereals, जिसमें आपके गेहूँ, मकई, ज्वार, बाजरा और रागी आते हैं, which are energy giving food. Second is pulses or meat, chicken and egg if a lactating mother कैन ईजिली टेक इट, तो वो भी उन्हें ईजिली इंक्लूड कर सकते हैं. एंड थर्ड इज़ योर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. फोर्थ इज़ योर ग्रीन लीफी वेजिटेबल इन विच योर अमरंथ लीव्स, कोलोकेसिया लीव्स, फेनुग्रीक लीव्स. देर आर लॉट्स ऑफ you can to say leafy vegetable which are seasonal and local in your market. And fifth is other vegetables which are yellow or green in color. And sixth is they have to take the seasonal fruits like lemon, guava, papaya, watermelon, which are local and seasonal. And last is nuts and oil seeds, definitely the gingerly seeds, the groundnut seeds, etc. So many seeds like poppy seeds they have to include in their lifestyle. Now how they are going to be include that type of foods and the energy giving foods, how they have to include that particular category in their meal plans. उससे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, there are 5 nutrients जो lactating mother को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है. Energy giving food items which are carbs and fats. Second is your bodybuilding food items, which is definitely your protein. Third is calcium rich food. Fourth is your vitamin A rich food. And last is your vitamin C rich food items, जिन्हें एक lactating mother को अपने daily डाइट में और इनकी क्वांटिटी भी डबल होनी चाहिए, उस हिसाब से इंक्लूड करना चाहिए. नाउ सबसे पहले अब हम एनर्जी गिविंग फूड्स के बारे में बात करते हैं, सीरियल्स के बारे में. नाउ इन एनर्जी रिच फूड आइटम्स यू हैव टू इंक्लूड मिक्सचर ऑफ सीरियल्स लाइक आप गेहूँ, मकई, ज्वार, बाजरा, रागी, जो आप इन सब का मिक्सचर बनाकर रख सकते हैं और उससे कंज्यूम कर सकते हैं. इफ़ आई एम गोइंग टू से तो आपको 50 ग्राम आपको उस टाइम पर गेहूं का आटा लेना है, उसमें 25 ग्राम आप चने का आटा और उसके साथ 25 ग्राम आप अदर कोई भी आटा, जो ज्वार, रागी, किसी को भी ऐड कर सकते हैं. प्लस 1 ग्रीन लीफी वेजिटेबल विच इज़ लोकल एंड सीजनल एट दैट टाइम इन द मार्केट, आप उसको इंक्लूड कर सकते हैं. दे आर गोइंग टू बिकम वेरी वेरी फाइब्रस, न्यूट्रिशियस, पावर पैक फॉर यू. अलॉन्ग विद दैट आपको रूट्स एंड ट्यूबर्स को डेफिनेटली इंक्लूड करना है, स्पेसिफिकली इन दिस सीजन जब मानसून आते हैं. There are potato, sweet potato or you can to say yam, colocasia, आपको इन सबको उस टाइम पर अपनी डाइट में इंक्लूड करना है. They are not only rich in carbs but also they are rich in carotene along with vitamin C, तो आप इनको भी ज़रूर ले सकते हैं. And you have to include jaggery and sugar. आप एक चपाती ले सकते हैं, उसमें देसी घी, और उस टाइम पर आप जैगरी को इंक्लूड करके उसमें एक चूरी बना सकते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी ग्रेट फूड फॉर योर स्नैक टाइम्स इन बिटवीन योर मेजर मील्स में आप उसे इजीली कंज्यूम कर सकते हैं, विच इज़ हाईली energy and power pack for you. And along with that there are so many local regional foods उस टाइम पर एक लैक्टेटिंग मदर के लिए होते हैं, लाइक पिन्नी आप उस टाइम पर कंज्यूम कर सकते हैं, पंजीरी उस टाइम पर कंज्यूम कर सकते हैं. आपको इन चीज़ों को 2 बार दिन में लेना है. अलॉन्ग विद दैट कुछ एरियाज़ में बंगाल ग्राम,
पयासाम होता है एंड कुट्टू होता है, गोंद के लड्डू होते हैं. सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजनल स्पेसिफिक फूड जिसमें बहुत सारी हर्ब्स और सीड्स को मिक्स करके स्पेसिफिकली ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए ही बनाया जाता है. खोया होता है, तो आप इन सब आइटम्स को उस टाइम पर कंज्यूम कर सकते हैं. एंड नाउ कम टू योर पल्सेस की अगर हम बात करें, दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स एंड डेफिनेटली दे आर हाईली रिकमेंड बाय योर बॉडी व्हेन यू आर लैक्टेटिंग. एट दैट टाइम आपको डेफिनेटली इन्हें कंज्यूम करना ही है, बट देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स व्हेन सम लैक्टेटिंग मदर्स कंज्यूमिंग इट. अगर वो बंगाल ग्राम की बात करें, राजमा की बात करें या फिर मीट की बात करें, बिकॉज वो उस टाइम पर उन्हें ईजिली डाइजेस्ट नहीं होते हैं. सो व्हाट यू हैव टू डू एट दैट टाइम, जब आप बंगाल ग्राम अलॉन्ग विद दैट राजमा को कंज्यूम करें, हमेशा आप उसे कार्ब्स के साथ ही कंज्यूम कीजिए, बिकॉज इससे एक तो उनमें जो प्रोटीन सोर्सेज हैं उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है, वो इजीली आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं. एंड यू कैन टू से जितना उनमें प्रोटीन सोर्स होता है, नो डाउट वेजिटेरियन सोर्सेज कम होते हैं, बट जितना उनमें होता है वो ईजिली आपकी बॉडी ले लेती है ऑल दैट न्यूट्रिएंट्स को. तो इसीलिए हमेशा जब भी आप पल्सेस को कंज्यूम करें तो डेफिनेटली आप उसे किसी भी कार्ब मील के साथ ही करें, अकेले प्रोटीन सोर्सेज को कभी भी कंज्यूम ना करें. एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेक मोर कैल्शियम रिच फूड आइटम्स एट दैट टाइम. उसमें अगर हम सीड्स की बात करें, यू हैव टू टेक जिंजली सीड्स, पॉपी सीड्स, मस्टर्ड सीड्स. दे आर हाईली रिच इन कैल्शियम, और कैल्शियम उस टाइम पर आपको और आपके बच्चे दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. दैट्स वाई द गायनिक रिकमेंड यू कैल्शियम विटामिन डी टैबलेट्स एट दैट टाइम, और सम टाइम विटामिन डी बच्चे को भी दिया जाता है देने के लिए. सो यू हैव टू टेक केयर कि आपको उस टाइम पर कैल्शियम रिच फूड आइटम्स को डेफिनेटली लेना है. एंड मिल्क एंड ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स, योर खोया, पनीर, इन सभी में बहुत अच्छा कैल्शियम प्रेजेंट होता है. सीरियल्स की अगर हम बात करें, रागी इज़ हाईली कैल्शियम रिच फूड आइटम. अलॉन्ग विद दैट आप अमरंथ सीड्स की बात करें तो उनमें भी बहुत अच्छा कैल्शियम हमें देखने को मिलता है. एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपके आते हैं योर कोलोकेसिया लीव्स, फेनुग्रीक लीव्स, अलॉन्ग विद दैट योर मस्टर्ड लीव्स, इनमें कैल्शियम बहुत अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होता है. एंड बंगाल ग्राम होल, राजमा, हॉर्स ग्राम होल, इन सभी कैटेगरीज़ में, इन सभी फूड्स में कैल्शियम बहुत अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है. अगर आप डेफिनेटली इन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, यू आर गोइंग टू बी फैबुलस फॉर योर चाइल्ड एंड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो. नाउ कम टू विटामिन ए रिच सोर्सेज. विटामिन ए आपको मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक काउज मिल्क, बफेलोज मिल्क, इफ़ यू आर टेकिंग खोया, पनीर, इनमें बहुत हाई अमाउंट में हमें देखने को मिलता है. अलॉन्ग विद दैट देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जिसमें हमें विटामिन ए देखने को मिलता है. Green leafy vegetable, there are amaranth, colocasia leaves, fenugreek leaves, mustard leaves, spinach. In fruits and vegetable, there are mango, papaya, orange, carrot, apricot. और इसी के साथ खोया, पनीर, बटर, इनमें भी विटामिन ए बहुत हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है. नाउ कम टू योर विटामिन सी रिच सोर्सेज. विटामिन सी, ऑल यू नो, मोस्ट ऑफ you get it from the citrus food items, but what are the citrus food items you have to include in your diet which are not so much costly, जो हमारे बजट फ्रेंडली भी होते हैं. सो यू हैव टू इंक्लूड, आप आंवला इंक्लूड कर सकते हो, आप अमरूद इंक्लूड कर सकते हो, उसके साथ आप लेमन इंक्लूड कर सकते हो, ऑरेंज हो गया आपका, पपाया हो गया आपका, एंड अलॉन्ग विद दैट द आलू बुखारा इज़ योर, एप्रिकॉट इज़ योर. There are lots of food options which is definitely highly you can to say vitamin C rich sources, और उस टाइम पर आपको डेफिनेटली चाहिए होते हैं. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फूड, दीज आर द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एंड दीज are the nutrition requirement which a lactating mother at that time when she breastfeed her child definitely need. Now 10 steps recommended by World Health Organization for a successful breastfeeding. Number 1 is no advertising of breast milk substitutes to the families. किसी भी family को कोई भी breast milk substitutes के samples या फिर उनकी promotion, उनकी branding करने की इजाज़त नहीं है, which is banned by World Health Organization and WABA also. Second is no free samples or suppliers in the healthcare system. Healthcare system में भी इनके sampling देने की इजाज़त अभी तक नहीं है. अगर कोई ऐसा करता है, that is against the codex which is generated by World Health Organization. Third is no promotion of you can to say the breast milk substitutes, infant formulas to the healthcare facilities. In the private sectors भी ये इजाज़त नहीं दी गई है कि किसी भी breast milk substitute या फिर infant formulas
को घर घर जाकर प्रमोट किया जाए, फ्री सैम्पल्स उसके दिए जाएँ, इवन इन अ फार्मेसी, इवन इन प्राइवेट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स. दिस इज़ अगेंस्ट अगेन द कोडेक विच इज़ जनरेट बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू protect breastfeeding. Fourth is your there is no contact between मार्केटिंग पर्सनल्स एंड मदर्स. जो मार्केटिंग पर्सनल्स और मदर्स उनके बीच कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए. एंड ऑल दीज 10 स्टेप्स जो हैं दे आर हाईली इन highlighted manner written in the codec of World Health Organization. And fifth is no gifts or personal samples for health workers. कोई भी ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स इन्फेंट फार्मूला एज अ गिफ्ट हम किसी भी हेल्थ वर्कर को नहीं दे सकते हैं. बेसिकली देयर इज़ नो प्रमोशन, नो सैम्पलिंग ऑफ एनी इन्फेंट फार्मूला ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट टू द इंडस्ट्री, टू द फैमिलीज, और यू कैन टू से टू द हेल्थ इंडस्ट्रीज. सिक्स्थ, कोई भी पिक्चर और लेबलिंग किसी भी ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट के ऊपर नहीं होनी चाहिए. अगर किसी भी पैकेज के ऊपर लेबलिंग या फिर हमें पिक्चर देखने को मिलती है देन इट इज़ अगेंस्ट द कोडेक. Seventh is again they have to provide a scientific and fact-based knowledge to all the healthcare professional, to all the health industry, that breastfeeding is a very special gift to a child. So mother को breastfeed definitely कराना ही चाहिए. And in some mothers जिनमें breastfeed करवाना चाहते हैं लेकिन उनका ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, वो लैक्टेट नहीं कर पाती हैं, सो दे आर हाईली रिकमेंड दैट द कैंगारू मदर care method is definitely recommended by every government sector, every private sector in the hospitals, and they are definitely saying this is for health industry कि kangaroo care definitely आपको देना चाहिए. And you have after 30 minutes of your delivery you have to start the kangaroo care for next 30 minutes. So उस mother और बच्चे में एक bond create होकर mother जो है वो easily lactate कर सके, इन फ्यूचर अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सके. नेक्स्ट, ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज़ गिवन टू द ब्रेस्ट मिल्क सब्सटीट्यूट्स एंड योर द आइटम्स विच इज़ included by the baby health industry, उनके ऊपर ये नहीं लिखा होना चाहिए. they are highly nutritious and they are highly beneficial for your child, because अगर ऐसा लिखा होता है this is against the law, and they are saying this is like for health workers, for health industries, like they have to promote only those breast milk substitutes, or they have to give their customer only those breast milk substitutes which fulfill the codex law. And next is unsuitable products should not be promoted for babies. babies के लिए किसी भी चीज़ को प्रमोट करना बिल्कुल भी सही नहीं है. and definitely जितना हो सकता है उसके लिए breast feeding को ही प्रमोट किया जाना चाहिए. and last is that all the products which are making by the baby health industry, they are highly hygienic, so that if a mother जो easily अपने बच्चे को breast feed नहीं करा सकते due to inadequacy of their milk, so definitely उस टाइम पर अगर वो उसे lactate कराती है, because इनमें infections के sources बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, so वो safely अपने बच्चे को breast feed करा सके. और breast feeding bottles जो होती है उनकी भी प्रमोशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ बच्चे के लिए बॉटल इतनी सही नहीं होती है जितनी मदर जब उसे ब्रेस्ट फीड कराती है उस टाइम पे एरियोला उसके लिए सही होता है. अगर आप फिर भी यूज़ करना चाहते हैं देन यू हैव टू यूज़ a clean bowl or a clean spoon. Thanks for watching the video. I hope this video may be going very beneficial for you. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy, and be happy. And definitely I'll come live in front of you in tomorrow's at 11:30 a.m. on YouTube. So be connected.